सो रिसेंटली जॉन जोन्स वर्सेस यूएफसी की तरह मैसविडाल के भी कुछ इश्यूज हैं यूएफसी से। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैसविडाल वर्सेस उस्मान। अभी एक महीने पहले ही इन दोनों के बीच में ट्रैश टॉक चल रही थी, जहां पे ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे। मैसविडाल बोल रहा था कि उस्मान ज्यादा पैसे मांग रहा है इस फाइट के लिए, और उसके बाद उस्मान बोल रहा था कि मैसविडाल उससे फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि मैसविडाल उससे डरा हुआ है। बट उसके कुछ दिनों बाद मैसविडाल ने कुछ ट्वीट किए, इफ आई एम नॉट वर्थ इट लेट मी गो। और उसके बाद मैसविडाल ने ट्वीट किया कि उसने जितने पैसे उसकी लास्ट फाइट में कमाए थे उसका हाफ अमाउंट वो अब नेक्स्ट फाइट में क्यों कमाए, क्योंकि उस्मान बड़ा नाम नहीं है। और फिर मैसविडाल ने ट्वीट किया कि अभी यूएफसी स्टॉक मार्केट में सबसे हाई है और यूएफसी आइलैंड खरीद रही है। और उसके बाद मैसविडाल ने एक हिस्ट्री लेसन दिया कि वो बिजनेस में 16 साल से है और उसने एक भी फाइट टर्न डाउन नहीं करी, और उसने नंबर 3 रैंक से फाइट करी उसके होम टाउन में। यहाँ पे वो डैरेंटल की बात कर रहा है। और फिर उसने रैंक नंबर 5 से फाइट करी और उसने लास्ट ईयर 3 डिफरेंट अपोनेंट से फाइट करी और उसने हर फाइट के लिए हाँ करी। और मैसविडाल ने बोला जब वो बैकयार्ड में फाइट करता था किसी ने भी उसे इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था जितना उसे अभी किया जा रहा है। और फिर मैसविडाल ने एक गिफ्ट फाइल ट्वीट किए और फिर डायना व्हाइट ने इस पर रिएक्ट किया और बोला कि उसने कोई आइसलैंड नहीं खरीदा, और बोला कि अगर उसे फाइट नहीं करनी तो मत करे, और बोला कि उसके पास इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इन्हें जब फाइट करनी है ये तब फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे डायना व्हाइट जॉन जोन्स की भी बात कर रहा था और बोला कि ये एनएफएल नहीं है। I don't know. Listen, we're going through some weird times right now. I mean, I just saw Masvidal saying, I want more money. It's like the whole fucking world is losing their minds right now, man. It's crazy. So, I don't know. I was going to ask you about Masvidal. What do you make of that? I mean, obviously it's just happened. I think everybody wants more money. I think everybody wants more money. I mean, in all these other sports, you have, and Masvidal says you got enough money to buy islands. Let me repeat. For the fucking billionth time, I did not buy an island, okay? We did not buy an island. And the reason we're doing the island is so that fights can go on and these kids from Europe and the rest of the world can make money and can work. So I think a lot of people are really, I don't know if it's frustrated and confused or what the situation is right now. These other sports are trying to figure out negotiations, how people will play for half the money they were going to play for before. And some of these other sports might not even go this year the way that it's looking. Who knows? So people are losing their minds. Listen, whoever I said it when we were going through the pandemic and the media was asking me, well, what if fighters are worried and don't want to fight? Well, you don't have to fight. Anybody that doesn't want to fight doesn't have to fight, including Masvidal and John Jones and all these other guys. And it doesn't have to be because of a pandemic. These guys are independent contractors. This isn't like the NFL where I can make you. You come to practice and you do this, or you're going to get fined, or you're going to get this. These guys can do whatever they want. They can say whatever they want. I had a big, thing the other day with a reporter about fighter pay. They can come out and tell you what they make any day of the week. They can do any of that stuff. These guys can do whatever they want, so they don't have to fight. Yeah. And we're not begging people to fight. We're offering fights because in our contract, I have to give you 3 fights a year, right? I owe you 3 fights a year. You have the ability to turn them down and not take them, so they can do whatever they want. और उसके बाद मैसविडाल ने ट्वीट किया कि यूएफसी को किसी अदर लीग से कंपेयर ना करे क्योंकि उन लीग्स में प्लेयर्स इवेंट के रेवेन्यूज का 50% कमाते हैं और यूएफसी में सिर्फ 12 और 18% ही पेपर व्यू रेवेन्यू शेयर करती है फाइटर से। और फिर मैसविडाल ने बोला कि वो केज के लोगों और जो हॉट डॉग्स वहां सेल करते हैं अरीना में और जो टिकट्स वो सेल करते हैं उसका वो बिल्कुल भी नहीं कमा पाते। और फिर मैसविडाल ने ये रीट्वीट किया, यूएफसी 4.2 बिलियन की है जिसमें से वो 16% फाइटर को पे करती है और 84% 3.5 बिलियन यूएफसी के पास जाते हैं, और एनएफएल 47% अपने प्लेयर को पे करती है और एनबीए 50% अपने प्लेयर को पे करती है और एनएचएल भी, और यूएफसी सिर्फ 60% पे करती है। और फिर मैसविडाल ने बोला कि अगर वो कहीं जा नहीं सकता तो वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। और फिर मैसविडाल ने ESPN पे एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे वो इसी सिचुएशन से रिलेटेड बात कर रहा था। Basically, it's not that I'm asking for more money. It's I'm asking for a bigger revenue share of what we bring in.
I got a lot of questions, and one of them is NBA, NHL, baseball. They make I think 50% of what the players with the organization of the players brings in. But football, I think it's 47%. Mine's is like 18%. So I have these questions in my mind, like why so much does to put the cage up cost so much to set up? What is it so much? You know, और देन डेना वाइट ने रिएक्ट भी किया था उस 18% रिवेन्यू जनरेटेड वाले क्वेश्चन का, और देन डेना ने बोला कि मैस्विडाल ने 8 फाइट डील साइन कर रखी है यूएफसी से, जिसमें से उसके 7 फाइट बची हुई है. Masvidal, when he spoke to ESPN earlier tonight, he said he laid out a statistic that fighters get paid 18% of the revenue generated by the UFC. Are you able to address that, whether that's accurate and whether that's a number that could change, that he's saying fighters should get more of the revenue that's generated? Being the financial wizard that he is, I'm assuming his numbers are correct. Here's the thing about Masvidal. We just signed a new deal with Masvidal. Masvidal just signed a new 8-fight deal. He's got 7 fights left on his deal. और फिर मैस्विडाल ने ट्वीट किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, और बोला कि हर फाइट के बाद यूएफसी उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देती थी. और मैस्विडाल ने जब यूएफसी को बोला था कि उसे 4 फाइट्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो यूएफसी ने बोला कि टेक इट और लीव इट. और आगे मैस्विडाल ने बोला कि अगर वो हारता है देन यूएफसी उसे कट कर सकती है यूएफसी से, बट अगर वो अपनी फाइट जीतता है तो वो रीनेगोशिएट नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. बेसिकली यहाँ मैस्विडाल कुछ ऐसी बातों के बारे में बात कर रहा है जो सिर्फ फाइटर्स को पता होती हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के बारे में. यूएफसी में 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 4 फाइट डील कॉन्ट्रैक्ट और 6 फाइट डील कॉन्ट्रैक्ट. मुझे सिर्फ इन्हीं 2 कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है. अगर कोई 8 फाइट डील कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. और अगर किसी फाइटर के कॉन्ट्रैक्ट में एक फाइट भी बची होती है तब तक वो यूएफसी से नहीं निकल सकता जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइट को कंप्लीट नहीं करेगा, और या फिर यूएफसी उन फाइटर को खुद निकाले. इसका बेस्ट एग्जांपल है एडसन बारबोजा. एडसन बारबोजा अभी कुछ महीने पहले यूएफसी से रिलीज होना चाहता था और उसने उसके लिए ट्वीट भी किया था, पर उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फाइट्स बची होगी और इसलिए वो यूएफसी से नहीं निकल सकता. और हेनरी सहूडो ने अभी रिटायरमेंट ली और उसकी लास्ट फाइट डोमिनिक क्रूज के साथ थी, और वो मेरे ख्याल से उसके कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट फाइट होगी, और इसलिए उसने सही टाइम पे फाइट के बाद रिटायरमेंट ली. और हेनरी सहूडो अभी एक फ्री एजेंट है. फ्री एजेंट मतलब कि वो अभी किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकता है, यूएफसी का उस पे कोई हक नहीं है, और वो अभी किसी दूसरी प्रमोशन में जाके फाइट भी कर सकता है. वो अभी बॉक्सिंग में जाके भी फाइट कर सकता है क्योंकि वो अभी यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. और अभी एंडरसन सिल्वा के कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 फाइट बची है, और डीसी के कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ख्याल से सिर्फ 1 फाइट बची है. और जब तक ये फाइटर्स इन कॉन्ट्रैक्ट की डील्स को खत्म नहीं करते तब तक वो किसी दूसरे प्रमोशन में फाइट नहीं कर सकते. और मैस्विडाल के पास तो 7 फाइट है उसके कॉन्ट्रैक्ट में. और उसके बाद फिर मैस्विडाल ने ये ट्वीट किया, और उसी के नीचे किसी ने पूछा था कि उस्मान ज्यादा पैसे मांग रहा था, और मैस्विडाल ने रिप्लाई में बोला दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी, और बोला कि यूएफसी ने ये उसे बोला था और वो उन दोनों के साथ खेल रही थी. और यहाँ पे मैस्विडाल बोल रहा है कि यूएफसी उसे झूठ बोल रही थी. और उसके बाद मैस्विडाल ने एक ट्वीट का रिप्लाई किया और बोला कि वो यूएफसी को लीव नहीं कर सकता, या तो यूएफसी उसे खुद निकालेगी या फिर वो फाइट करे, और जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो जाए तब तक वो यूएफसी को लीव नहीं कर सकता. और उसके बाद मैस्विडाल ने ट्वीट किया कि मैस्विडाल ने इस कैंप में बेस्ट रेसलर मंगवाए थे इस प्लेनेट के, और वो 11 जुलाई को फाइट करना चाहता था. और फिर उसके बाद गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस उस्मान फाइट बुक हुई यूएफसी 251 के लिए. और मैस्विडाल ने एक ट्वीट रीट्वीट किया जहां पे एक बंदे ने लिखा था कि आई वांट बाइंग यूएफसी 251. और फिर उसके बाद किसी ने डेना वाइट से पूछा था कि वो सरप्राइज है कि मैस्विडाल टाइटल के लिए फाइट नहीं कर रहा, और डेना ने बोला कि मैस्विडाल डियाज ब्रदर की तरह है और वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है. Massive card with the pay-per-view. I think the only surprise was that Gilbert Burns was in there instead of Jorge Masvidal. We understand where Masvidal has been at, but I guess can you just talk about having to make It's that not a decision? surprise. I mean, this is what we do. I mean, we've been doing this for 20 years. People who want to fight get fights, and people who don't. And he's the #1 ranked guy in the world. #1 versus the champion. Yeah. And this kid wants to stay busy, you know. These kids that come out and go on runs like Burns is on and want to keep fighting and stay active, they're healthy, and they want to. It's the smartest thing you could do, you know. And it doesn't surprise me that Masvidal, Masvidal is very much like the Diaz brothers. You know, he beats to the sound of his own drum. When he wants to do something, he does it, and
It's not very surprising at all. So any alternate plans for Masvidal right now, or is it just kind of a wait and see and let him come to you? Yeah. Listen, I'm putting on fights every weekend for the next 10 years, all right? And if you want to fight, call us. We'll offer you fights, and if you don't want to take them, you don't have to. It's always been that way. Everybody's acting like this is like some new fucking drama that just popped up, and this has never happened before in the history of the sport. This happens all the time, nonstop. Fighter pay has been a big discussion. You got grilled on ESPN, all those things. I'm curious. I mean, you've laid out the scenarios with these individual fighters, but is there room for a bigger discussion? You know, can there be greater revenue, that sort of thing? Again, like the thing that I went through with Kevin the other day. I went through this with Kevin the other day. This isn't new either. There's a lot of new people covering us. There's a lot of new people that don't know a lot about the sport. That's new. This isn't new. This is the same old shit. Yeah. Last question for me. And all these fighters that are, you know, they share in the revenue. They do share in the revenue. They have they have the upside in the pay-per-view, you know. And guys that sell pay-per-view make a lot of money. और मैसविडाल ने फिर ये रिप्लाई किया और कल दोबारा ही मैसविडाल ने ट्वीट किए कुछ इन सब सिचुएशन से रिलेटेड। फर्स्ट उसने ट्वीट किया उस डील से रिलेटेड और उस ट्वीट में मैसविडाल ने लिखा था कि वो इस डील के बाद यूएफसी के साथ कोई डील साइन नहीं करेगा। और सेकंड ट्वीट उसने कुछ कमेंटेटर्स के लिए किए, आई डोंट नो क्यों उसने ये ट्वीट किया। और फिर उसने अगेन एक ट्वीट किया अबाउट हिज कॉन्ट्रैक्ट। और वैसे वो कमेंटेटर्स पॉल फेडर, माइकल बिस्पिंग और डैन हार्डी होंगे क्योंकि वही हैं वाइट कमेंटेटर्स। और प्लॉट ट्विस्ट, ये ट्वीट मैसविडाल ने माइकल बिस्पिंग और चेल सनन के लिए किए थे क्योंकि माइकल बिस्पिंग ने अपने पॉडकास्ट में बात करी थी नेट डियाज की कि वो नेट डियाज को फाइट करते हुए देखना पसंद करते हैं, ना कि बातें करते हुए। सो ये चीज थी जो मैसविडाल को शायद पसंद नहीं आई होगी। और चेल सनन ने सिर्फ यही बोला था कि मैसविडाल ने बहुत बड़ी गलती करी इस टाइटल शॉट को नहीं लेके, क्योंकि अब ये टाइटल शॉट गिलबर्ट बर्न्स को मिल चुका है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स की क्या ये चीजें सही हैं जो मैसविडाल कर रहा है। मेरे ख्याल से नहीं। अभी रिसेंटली एरियल हवानी ने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि यूएफसी ने लास्ट मोमेंट पे मैसविडाल को उतना पैसा ऑफर किया था जितना उसने नेट डियाज वाली फाइट में कमाया था, बट उसने फिर इस फाइट के लिए मना कर दिया और बोला डैमेज हैज बीन डन। So let me ask you this. Originally, Masvidal's issue was that they were offering him less to fight Usman, that they were offering him or that they paid him to fight Nathan Diaz for the BMF title. And he's like, wait a second, that was a fake belt. Now I'm fighting for the undisputed title. How are you going to offer me less? In the end, I'm told they actually ended up offering him at the 11th hour the same amount that he made for Nathan Diaz, but I was told the damage was done, they were too far apart, and so they went with Gilbert Burns on Monday. Do you feel like Masvidal overplayed his hand? Should he have just gone with what the offer was, which essentially became the same that he made for Nathan Diaz, or do you think that he deserved more? And again, it's very hard. I understand. I can see the fact that we don't know the exact numbers, right? So we're kind of going with what both sides are telling us. But the main question is, do you feel like he overplayed his hand here? और कोबी कविंटन ने फरवरी में एक इंटरव्यू दिया था जहां पे उसने ये सेम चीज बताई थी कि मैसविडाल कुमार उस्मान से फाइट नहीं करेगा, वो अपने प्राइस बढ़ा देगा और ये फाइट नहीं होगी। Because I've been telling people in the media for months what's going to happen with that fight. I said journeyman George Masvidal, aka the Street Judas, is going to overprice himself out of the fight. He don't want to fight Marty Fake Newsman. He don't want to fight anybody that can wrestle because he can't wrestle. All he can do is get lucky and throw some Hail Mary shots and land some Hail Mary knockouts and get lightning in a bottle and get a little hype on him. That's all George is hype. Let's not forget the man has double-digit losses. He's got almost 15 losses on his record. Let's not forget the guy's a 50-50 fighter in the last 3, 4, 5 years, if you look at his record combined. Let's not forget, you know, the guy hasn't beat anybody relevant in the top 5. The guy's all hype. I mean, this is what's bad about the sport today is that all you have to do is get 1 or 2 knockouts and you get all the hype on you and people think you're a world beater, but it's not realistic. So, but going back to my original point is that George is not going to sign this fight. I think you know what happened. This fight was supposed to be signed a month or 2 ago. They've been they've been dragging this fight out, trying to get this fight signed. And you see, George is getting too much issues. He wants the Conor fight, and he thinks he deserves Conor money. He doesn't deserve Conor money, and he's not a Conor level fighter. So, you know, he needs to get over that. He needs to get out there and either take the ass whooping by Marty and get exposed, which I don't think he's going to show up for, or he needs to sit the fuck back and let the big boys play at the top of the mountain. And that's me against Marty Fake Newsman.
round 2. और रही बात यूएफसी में फाइटर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आई थिंक ऐसा नहीं है। यूएफसी में फाइटर पैसा कमाते हैं, बट कितना पैसा कमाते हैं हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और एक जो चीज़ थी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, वो कि फर्स्ट मास्विडाल कह रहा है कि फाइटर्स पैसा नहीं कमा पा रहे, एंड देन वो एक ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा है और ऐसी चीज़ें रीट्वीट कर रहा है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो UFC 251 पे पर व्यू को बाय नहीं करेंगे। तो ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट रास्ते में चल जाती है। एक तरफ तुम कह रहे हो कि यूएफसी में फाइटर पैसा नहीं कमा पा रहे, और दूसरी तरफ तुम एक ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हो जिससे कि यूएफसी फाइटर्स पैसा नहीं कमा पाएंगे। मैस्विडाल बेसिकली कह रहा है कि पेपर व्यू बाय मत करना। इससे क्या होगा? इससे यूएफसी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इससे सिर्फ फाइटर्स ही पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जो लोग भी पेपर व्यूज बाइज करते हैं उन्हें पेपर व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर लोग पेपर व्यू बाय नहीं करेंगे देन उसे पेपर व्यू पॉइंट कैसे मिलेंगे? तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि एक तरफ मास्विडाल यही कह रहा है कि यूएफसी में फाइटर पैसा नहीं कमा पा रहे, और दूसरी तरफ मास्विडाल ये चीज़ें शेयर कर रहा है कि पेपर व्यू को बाय मत करो। सो आई डोंट नो कि आगे इनके बीच में क्या क्या चीज़ें होगी। और बाय द वे, जॉन जोन्स और मास्विडाल इन दोनों के मैनेजर सेम है, बट अभी इन दोनों को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और आई डोंट नो क्यों। और रही बात जॉन जोन्स की, आई थिंक कि जॉन जोन्स ने एक गलत पॉइंट पे वो फाइट मांगी। अगर वो अभी सुपर फाइट मांगता है और वो टाइटल फाइट नहीं है, ऑफ कोर्स उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि टाइटल फाइट को ही यूएफसी में ज़्यादातर फाइटर सुपर फाइट कंसीडर करते हैं। वो बात अलग, अगर तुम कॉनर मैग्रेगर हो और नेट डियाज के साथ फाइट कर रहे हो देन वो सुपर फाइट हो जाती है, क्योंकि दोनों ही फाइटर काफ़ी बढ़िया हैं। जिस तरीके से वो बिजनेस को हैंडल करते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस को हैंडल करते हैं। और यहीं पर मुझे तो ये चीज़ें बेकार लगी कि मास्विडाल और जॉन जोन्स ये चीज़ें कर रहे हैं, वो भी पैसे कमा सकते हैं इस बिजनेस से, पर अगर वो चीज़ें थोड़ी ढंग से करें। ऐसा नहीं है कि जॉन जोन्स भी पैसे नहीं कमाता, जॉन जोन्स भी बहुत पैसे कमाता है, और मास्विडाल भी बहुत पैसे कमाता है। बस हमें नहीं पता कि वो कितना पैसा कमाते हैं। वो बहुत पैसे कमाते हैं, बट वो ये है कि अभी वो और पैसे कमाना चाहते हैं, जिसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। बट टाइटल फाइट छोड़ देना ये सच में बहुत बड़ी गलती है, और मैं सच में बोलना नहीं चाहता बट बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। मतलब कि अब उसने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो यूएफसी को अच्छा नहीं लगेगा, कि वो ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा है कि UFC 251 पेपर व्यू बाय मत करो। मतलब सोचो, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं एक सेलिंग का काम कर रहा हूँ, और मैं लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं बल्कि लोगों को कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट मत खरीदो, ये मेरी कंपनी ने बनाया है, ये प्रोडक्ट मत खरीदो, ये बहुत बेकार है। तो क्या वो कंपनी मेरे से खुश रहेगी? नहीं। आई होप कि मास्विडाल और यूएफसी का रिलेशन सही रहे, और जो नेक्स्ट फाइट हो मास्विडाल की मेरे ख्याल से नेट डियाज से ही होगी। और जो नेट डियाज, क्योंकि वो एक इजी फाइट होगी मास्विडाल के लिए, और मास्विडाल वो फाइट ज़रूर जीतेगा। आई थिंक, मेरे ख्याल से वो ज़रूर जीतेगा। और नेट डियाज ने भी इससे रिलेटेड ट्वीट किया, गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस उस्मान से रिलेटेड, जब ये फाइट बुक हुई थी, कि वो उससे ज़्यादा पैसा कमाता है, और उस्मान ने भी इसका रिप्लाई किया, और RDA ने भी इसका रिप्लाई किया। और बाय द वे, RDA 155 पाउंड में वापस आने वाला है। वो पहले 155 में चैंपियन था, और फिर वो 170 में चला गया, एंड देन अब वो 155 के लिए दोबारा रेडी है। सो बस आज के लिए इतना ही। फॉलो मी ऑन इंस्टा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। This shit is way too easy, I swear it doesn't please me. I'm like a reaper gleaning when I take my pick and squeeze it and feel its power breezing, soon be 6 feet deep. Believe I'm bored of being at the peak, so time to see what lies beneath. What's Gucci, my gamer? What's brewing, my gamer? Got that enchanted shit, Lapis Lazuli, my gamer. Little bitch is always pissed at me no matter what, so they can suck this dick I made with 400 blocks. Cause I'm fully stacked diamonds, fully stacked diamonds. You won't see me crying, I'm fully stacked diamonds.